آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ایوان اس کے در و دیوار بہت ساری چیزوں کے شاہد ہیں، لیکن میری ایک آپ سے استدعا ہے جو میری آواز سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میں کن سے مخاطب ہوں، کہ اگر آپ نے اس ایوان کے اندر میں نے آپ کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، میں نے آپ کو بطور اپوزیشن کے بے پناہ وہ موقع جو کہ یا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، میں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ اس ایوان کے اندر آپ کو دیے، میں نے آپ کی سخت سے سخت بات کرنے کو آپ کو موقع دیا اور آئندہ بھی دوں گا، لیکن میری صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ ان اسمبلیوں کو گالی کی جگہ مت بنائیں، ان اسمبلیوں کو صرف احتجاج کا وہ مرکز نہ بنائیں۔ یہاں پر آپ آن اوتھ ہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہے، آپ نے حلف اس بات کا اٹھایا ہے کہ آپ with the constitution and with the rules، ٹھیک ہے، تو میں اپنا حق محفوظ رکھوں گا ان تمام اقدامات کے لیے جن کی آپ کی طرف سے مجھے اطلاع دی گئی۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک بڑا ایشو بنا عمران خان صاحب کی خواتین افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی، اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ دھرنے سٹارٹ ہو گئے، آج بھی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس حوالے سے بھی اپوزیشن کا آج ایک نظر ہے وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اور پارلیمنٹ اس میں ایسی افواہ سازی پہ کیا کرنا؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، میں افواہیں تو افواہیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی حال میں گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن میرا کیونکہ فرام اے پوزیشن ویئر آئی سیٹ آئی ہیو ٹو بی اے ماڈریٹر، میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے۔ میرے پاس کچھ ان کے اصحاب آئے تھے جنہوں نے کچھ بات اس کانٹیکسٹ میں کی تھی، تو میں نے جب جیل مینول کے مطابق دیکھا تو جیل مینول میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ساتھ جیل اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے ان وانٹ آف سرٹن ٹو مینٹین آرڈرز، وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ تو جیل مینول کے ساتھ کون ٹریٹ نہیں ہوا؟ جیل مینول کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب ٹریٹ ہوئے، جیل مینول کے مطابق ہوئے۔ جیل مینول کے ساتھ کون ٹریٹ نہیں ہوا؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوئی، جناب آصف علی زرداری صاحب ہوئے، جناب میاں شہباز شریف صاحب ہوئے، اور 3 سال تک میاں حمزہ شہباز صاحب بھی جیل مینول کے تحت ہی ٹریٹ ہوتے رہے۔ اور اگر جیل مینول میں یہ لکھا ہے کہ کوئی جا کر جیل کے دروازے پر ہلڑ بازی کرے گا، جیل کے دروازے پر کوئی جا کے زیادتی کرے گا، ہوگا قید بھی کیسی سنگین ہوگی، جس میں اگر میرے نزدیک ہو تو وہ بڑے سنگین جرائم ہیں، آپ کی سالمیت پر حملے کے مترادف جرائم ہیں، ایسے جرائم ہیں جس میں آپ پاکستان کا نیشنل آرکائیو جلا دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں جن میں آپ ملٹری انسٹالیشنز کو جلا دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں جن میں آپ شہداء کے مجسموں کو ڈسگریس کر دیتے ہیں، ایسے جرائم ہیں آپ، ایسے جرائم ہیں جس میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دیتے ہیں آپ، ایسے جرائم ہیں اور یونیفارم کھڑے لوگوں کو گولیاں مار کے۔ اچھا تو پھر یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ اگر یہ میں کروں تو مجھے تو سزا ملے اور میں بین ہو جاؤں، اور اگر یہی کام کوئی اور جماعت کرے تو اس کو بین نہ کیا جائے۔ میں یہ بھی پوچھنے میں حق جانب ہوں کہ اگر ایک شخص جو 4 یونیفارم کے لوگوں والوں پر گولیاں برساتا ہے اور املاک کو جلاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چاہے ٹی ایل پی ہے، یہ شورش زدہ ہے اور اس کو آپ بین کر دیں، اور ایک جماعت ہے جو لوگوں کے گھر جلا دے، اس کی ویڈیوز آڈیوز اویلیبل ہیں، کور کمانڈروں کے گھر جلا دو، وہ جا کر میاں والی ایئر بیس جلا دے، وہ قلعہ بالا حصار جلا دے۔ ایک دہشت گرد نے بھی کل ایف سی ہیڈ کوارٹر بالا حصار کے باہر حملہ کیا ہے، اس نے بھی اس کو جلایا ہی، اور کیا کیا ہے؟ اور اگر یہ کریں، یعنی ایک کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ میں اس معاملے میں تو میرے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، جنہوں نے جو جرائم کی ہیں ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے حمزہ آپ لے لیں، میں اس کے بعد آتا ہوں۔ دیکھیں صوبوں پر لوگوں کے نقطہ نظر ہیں، صوبوں پہ ایک بڑی مؤثر آواز میاں عامر محمود صاحب اٹھا رہے ہیں، اور میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ جب کچھ حقائق پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ان کی بات کو غور سے سننا پڑ رہا ہے۔ ابھی جو پیچھے ان کا ایک انٹریکشن تھا وہ میں نے سنا ہے، اس انٹریکشن میں کچھ سوال جواب کی نشست بھی تھی، تو I just found it on the TV and I had some interest،
तो मैंने कहा इसको यहाँ रोक दे, सुने क्या कह रहे हैं। तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वजन मालूम होता है। अब मिसाल के तौर पे आप कहें कि पंजाब का सूबा 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और इस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच है वो डिस्ट्रिक्ट की है, तहसील की है, और वो तहसील डिस्ट्रिक्ट की आउटरीच यूनियन काउंसिल की है। अब ये एक सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी फॉर दैट, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इसको पब्लिक सर्वेंट कभी इक्वेट नहीं कर सकता। ये बहुत सख्त ज्यादती होगी, कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई। तो मियां आमिर इज मेकिंग लॉट ऑफ रीजन सूबों की बात पे जो वो रीजन कर रहे हैं, और अब उसकी बाज़गश्त भी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं है। तो जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, तो सो वी हैव टू स्टॉप। मैं इसमें ओपिनियनेटेड नहीं हो सकता, मैं इसमें अपनी राय नहीं दे सकता क्योंकि ये मैटर करेगी। तो मेरा उस वक्त तक इंतज़ार होगा कि लेट्स सी दोज हू मैटर वो क्या कहते हैं, इसमें सियासी जमातें क्या कहती हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे। अब मुस्लिम लीग की भी पोजीशन आपके सामने जनूबी पंजाब के बारे में बड़ी वाज़ेह रही है, हज़ारा के बारे में बड़ी वाज़ेह रही है, और अब क्या वो इस लेंथ तक चली जाए जिस लेंथ तक ये बहस चल रही है कि इतने ज़्यादा सूबे बना दिए जाएं, इंतज़ामी यूनिट बना दिए जाएं। तो उसमें फिर ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि देखें अगर इतने ज़्यादा सूबे बनाएंगे तो इतने ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, इतने ज़्यादा गवर्नर होंगे, इतने ज़्यादा कमिश्नर होंगे, इतने ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी होंगे, और ये कैसे होंगे, इतना बोझ कैसे पड़ेगा, ये कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी, किस तरीके से होगा ये। तो ये सारे वो सवाल हैं जिनके ऊपर कोई संजीदा बातचीत हुकूमती सतह पर भी हम नहीं देख रहे। और जो लोग इस पर बात कर रहे हैं बशमूल मियां आमिर महमूद साहब के, वो ये कह रहे हैं कि ये एकेडमिक बातचीत है। वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और बड़े मोतबर अदारों में वो जाके बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कराची की उनकी इंटरेक्शन सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों की मैंने देखी, हु इज़ हु वाज देयर, और सबकी बातचीत भी हमने वहाँ पर सुनी। तो ये बाज़गश्त है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर अब आप मुझसे पूछें कि रियासत और शहरी का मुआहिदा, अब मैं आपको बताऊं रियासत और शहरी का मुआहिदा एक बड़ी डेलिकेट चीज़ है। अब अगर मुझे मेरी स्टेट मुझसे नेशनलिज्म का तकाजा करती है, मुझसे पाकिस्तानियत का तकाजा करती है, तो मुझे मेरी स्टेट पाकिस्तानियत मेरे अंदर कैसे इन्फ्यूज़ कर सकती है, इंजेक्ट कर सकती है, वो मुझे अपने उस मजबूत मुआहिदे की बुनियाद जिसमें मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी मेरे साथ हों। और वो कैसे हो सकते हैं अगर मैं एलियन रहूँ, यानी 25 करोड़ लोग रियासती अमूर में हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं डेवोल्यूशन के साथ, मोर एम्पावरमेंट के साथ। ये मुमकिन नहीं है। देखिए मॉडल्स है ना, एक मॉडल है स्विट्ज़रलैंड में है कि आप 2 लाख लोग एक बड़े मैदान में जमा कर लेते हैं और रेफरेंडम कर लेते हैं कि कितने लोग हैं जो इस हक़ में हैं, वो उसके अंदर अक्सरियत की बात कर लेते हैं। ऐसा मॉडल भी है। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि आप लोग वायलेंस के साथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बांग्लादेश में वायलेंस के साथ कर लिए, नेपाल में वायलेंस के साथ कर लिए। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट है। लेकिन जो आपकी शहरियों की ओनरशिप है रियासती अमूर में, ये रियासत के मुआहिदे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या वो छोटे सूबों के साथ होगी, क्या वो लोकल गवर्नमेंट के साथ होगी, क्या सिर्फ 1500 दफातर, ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि आई एम नोबडी टू मेक अ डिसीजन इन दैट। और मुझे तो अभी मैं देखूंगा कि पीपल्स पार्टी या मेरी जमात मुस्लिम लीग, मैं तो आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ना अपनी सियासी राय दे सकता हूँ, ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जा सकता हूँ। इस असेंबली के अंदर बैठ के अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी राय ये है कि जो ये गवर्नेंस का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसको जितना स्ट्रेंथन, जिस तरह के इकदाम आज पंजाब गवर्नमेंट कर रही है,
ये स्ट्रेंथन कर रही है। लेकिन अगर ये पंजाब गवर्नमेंट राइट टू पार्टिसिपेट दे दे तो ये तो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है माजी में मरीम नवाज साहबा हो या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, उनकी मुलाकातें उनके अजीज रिश्तेदारों के साथ होती रही हैं। अब देखने में पीटीआई जो इल्जाम आयद कर रही है, रात से एक सूबे का वजीर आला जो है वो धरना देकर बैठा है जेल के बाहर। उसका ये मुतालबा है कि कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक ना तो उनकी बहनों की मुलाकात होने दी जा रही है ना उनकी मुलाकात होने दी जा रही है। इस पे सरा देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसी जेल मैनुअल में गालिबन ये भी है, और मैं विद लॉट ऑफ सर्टेनिटी मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ इख्तियारात टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट के पास या जो भी कार्य इख्तियार या होम डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास होते हैं। और अगर मैं एज प्रिजनर या मेरे लवाहिकीन एज प्रिजनर के लवाहिकीन के कुछ अनरेस्ट पैदा कर दें और कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें जिसके साथ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो और मॉब लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दें और वहाँ पे जाके थ्रेटन करें और वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर हो, तो उनके पास अपना ऑर्डर मेंटेन करने का भी इख्तियार है, वो भी उसी मैनुअल के तहत। तो मेरा ख्याल है जो कुछ भी हो रहा है बड़ा लीगल हो रहा है। मैं बारी बारी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। दूसरे बेरोजगारी में बहुत तेजी से बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। मैं अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस रिपोर्ट के मंदरजात को देखें, उसके अंदर बड़े सीरियस चैलेंजेस। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑफिसेज हैं ऑफ गवर्नमेंट जिनमें आपके वो दफातर हैं जो सिविल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक बाकायदा फ्रॉड हुआ हुआ है। आपके प्रियम्बल में लिखा है टू बी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, और आपने वो कुछ सरकारी अफसरान के हाथ में दी हुई है। तो जब तक वो पॉलिसी मेकिंग के मुतल्लिक देखिए कैबिनेट के डिसीजंस, इसकी एक आर्गूमेंट ये होती है, ठीक है जी ये फैसला जो है काबीना करती है, काबीना इस गवर्नमेंट चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पर आ गए तो ठीक है। फिर जो सेक्रेटरीज़ की ACRs हैं, जो सेक्रेटरीज़ के फाइल्स के ऊपर फाइनल डिसीजंस हैं, जिनकी अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड इन द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर बात को ख़त्म करें, मामले को सीधा करें, तो फिर कोई जिम्मेदारी भी ले लेगा। फिर IMF की रिपोर्ट का जो मसला एक सेकंड देखिए, इसकी मैं बड़ी बाज़ सुन रहा हूँ। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिपोर्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ कोई आके इस पर बहस करने को तैयार है। मैंने उस रिपोर्ट के मंदरजात देखे हैं, कहाँ पर आके वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो सारे के सारे मसाइल उन दफातर में पैदा हो रहे हैं जिनको आपने पता नहीं किस मर्जी के तहत बाख्तियार किया हुआ है। ट्रस्ट योर पीपल, दोज हु गेट रिप्रेजेंटेटेड, दे विल परफॉर्म बेटर। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, खालिद साहब एक मिनट, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन और मैं खालिद क़य्यूम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें यही तो मेरी इस आज की पूरी टॉक का और मेरा इतनी लाउड बात करने का मेरा मुद्दा क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट IMF की है, चले उसी को बुनियाद बना के आगे चलते हैं। ये मैंने आपसे जितनी गवर्नेंस की बेहतरी की रिपोर्ट पर बात की, जिस बुनियाद पर आज मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको पता है मैं बड़ा मुतात आदमी हूँ और मैं सिर्फ राय देता हूँ और अपनी राय देने को मैं अपना हक समझता हूँ, लेकिन आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। किस बात पे कर रहा हूँ कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, 70 साल से मैं गंदगी के, गलाजत के, ओपन हीप के, खुले ड्रेन्स के, छपड़ों के नीचे दबा मर रहा था। और मुझे एक हुकूमत आई, उसने कहा नहीं आप इंसान हो, आपको ज़िंदा रहने का हक है, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने मेरे साथ ये हुस्न सलूक शुरू किए। उसके अंदर ये अब कुछ इब्तदाई मराहिल में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन ये 70% 12 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोग हैं जो कि बग़ैर इस निज़ाम के कि कैसे उनका घर, मोहल्ला, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान कैसे साफ होगा, इस निज़ाम के बगैर रह रहे थे। दिस वॉज एन एपिडेमिक। आज किसी ने बात की, अब उसकी रिपोर्ट जब मेरे पास असेंबली में आई तो मैंने देखा
वाहिद मैकेनिज्म जो अकाउंटेबिलिटी का है वो रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस है। अब इसको एक जमात जो आज मेरी असेंबली में अपोजिशन है बावजूद इस निज़ाम को मतरूक करना चाहती है, रिडंडेंट करना चाहती है, इसके खिलाफ खड़ी है। एक एक अमल उनका जो है, मैंने आपको देखें आप आगे मिसाल दी कि ये जो फ्लो करेगी गुड गवर्नेंस और ये जो फ्लो करेगी अकाउंटेबिलिटी, ये जो इरेडिकेट करेगी करप्शन, उसकी ओपन, इससे ज़्यादा कुछ और हो सकता है? एवरी वर्ड सेड इन दिस हाउस, मेरे पास 20 लोग आए, हुकूमती लोग, असेंबली के लोग, मेरा असेंबली सेक्रेटेरिएट, आई मेड दिस पॉइंट कि एवरी सिंगल वर्ड विल बी टेलीवाइज्ड लाइव। नहीं बेहतरी आपके अंदर अगर कुछ नहीं है तो आप एक्सपोज हो, सामने है। देखिए बात ये है, कुछ नेशनल सीक्रेट्स हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के रिलेटेड है, हमें उनका बहुत एहतराम है। उनको जितना हम गार्ड करेंगे, कौन गार्ड करेगा? कोई और नहीं कर सकता, ये असेंबलीज गार्ड करेंगी। दीज असेंबलीज डिमॉन्स्ट्रेट द विल ऑफ पीपल। अब हम चाहे थोड़े हैं इस नुक्ते पे, लेकिन हमारी आवाज़ बड़ी तवाना है, ट्रस्ट मी फॉर दैट। हम अपनी ये आवाज़ बड़े ज़ोर से उठाते रहेंगे और हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पार्लिमानी स्ट्रेंथनिंग के अंदर ही तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और अभी आपकी जो ये ट्रांसलेट होगी गवर्नमेंट की, जो गुडविल ट्रांसलेट होगी, वो मोर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दीज असेंबलीज के साथ हो। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चीज़ें, इनके अपने अपने राइट्स और इंटरेस्ट हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी ने असेंबली के इन तब्दील शुदा कवानीन के साथ मुआवनत की और बहुत जल्दी वो चीज़ें जो 18वीं तरमीम के बाद आइन की मंशा थी वो पूरी होने लगी। अच्छा मलिक साहब, जी हर फैसला मलिक साहब ये बताएं, ये इसी पॉइंट पर अब आप पिछले 20-21 माह से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं कि हाउस में वापस आओ, लेजिस्लेशन का पार्ट बनो। इस वक्त जो स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन करके बाहर निकले लोग हैं, जिनका इस्तीफा भी आपने कबूल नहीं किया, इनको वापस कौमी धारे में लाने के लिए कोई एफर्ट दोबारा स्टार्ट होगी? एक तो इस्तीफा कबूल ना करना है। देखिए, मैं खाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुकूमत को और अपोजिशन को आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये सियासत है, ये जमहूरियत है और इस पे लाजमी तौर पे उनको बातचीत करनी चाहिए। सियासी हालात सबके लिए मुश्किल रहे। लेकिन अगर आज तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके लिए सियासी हालात मुश्किल हैं, तो जो गुज़श्ता कल थी उसमें मुस्लिम लीग के लिए बहुत मुश्किल थी। मैं कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जिनके कारोबार बंद थे, जिनके बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे, जिनके शहजाद अकबर साहब ने एज प्रोसिक्यूशन मिनिस्टर, कभी हमने प्रोसिक्यूशन के मिनिस्टर सुने थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मिनिस्टर्स नहीं सुने थे। उस दौर में तो ये भी हुआ था और उसमें लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर से निकाल के, और फिर ये हुकूमत में तो कुछ वज़ादार लोग होंगे शायद, मेरा ख्याल है। मैं रात को टीवी पे वो नहीं देखता जो पिछले दौर में किया जाता था कि 7 to 11 6-7 लोग तनख्वाहदार ला के बिठाए जाते थे, अब वो उनकी कैब कबीना का हिस्सा भी होते थे और वो बैठ के लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस के, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स के सेक्शन 114 के नोटिस की बात की थे, उनको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर कभी नैब कभी FIA, एक लंबी कहानी है। कम से कम वो मैं सिलसिला आज नहीं देख रहा, हालांकि जो ज़ुबान ज़द-ए-आम कहानियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। किसको नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है। एवरीबडी नोज़ हु इज़ डूइंग व्हाट। जब कोई हुकूमत में बैठ के कुछ गलत कर रहा होता है और वो भी इतने मोतबर दफातर में बैठ के कर रहा होता है तो सबको पता होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लोगों की कर्टसी है कि अभी ये उस तरह की स्टोरीज़ जो पिछली हुकूमतों के ऊपर सवाल उठाने पे होती थी उस पर नहीं कर रहे। लेकिन मैं तो इस सब आपसे मुत्तफिक हूँ। नवाज शरीफ ने काफी से बात है वो शाही की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान और जो उनके साथी थे उनका इख्तिलाफ होना चाहिए। आपने समझते हैं कि मुनासिब वक्त है? देखिए, मैंने भी वो कल मियाँ साहब का स्टेटमेंट जो उनकी इंटरेक्शन थी उसको मेरा ख्याल सियाको सबाक में रखना चाहिए। मियाँ साहब की जो पूरी गुफ्तगू थी वो बड़ी इस एतबार में थी जिनमें वो अक्सर वो इसका जिक्र करते हैं कि देखें पाकिस्तान बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रहा था, पाकिस्तान मुआशी एतबार से तरक्की कर रहा था,
पाकिस्तान ने एनर्जी क्राइसिस पर काबू पा लिया था, पाकिस्तान एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा था। वो ये जिक्र कर रहे थे कि सी पैक जैसे बड़े मुअस्सर और बड़े काबिल अमल मंसूबे पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल टर्न अराउंड कर रहे थे, और उसके दौरान वो लोग जिन्होंने इस सिस्टम को चलाया बाद में, उनके दौर में ये सारी चीज़ें पीछे हट गई, तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं, ये उसका सियाको सवाल। अब मुझे शिकवा ये है कि उसको फिर एक अलहदा रंग दिया गया, और कल फिर ये कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को लेकर कि बयानिए का बोझ, मियाँ साहब ने कब कहा कि किसी को पकड़ के टांग दो और ऐसा करो वैसा करो। मैंने वो उनकी पूरी बात सुनी है, उसमें कतई तौर पे जो कल सारा दिन वो डिमॉन्स्ट्रेट करती रही सारी बात। अब मैं क्योंकि पार्टी पोजीशन से बात कर नहीं सकता, मेरे हदूदों के यूद हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक और उस पूरी तकरीर, क्योंकि वो एक गुफ्तगू थी, वो ऐसी गुफ्तगू थी जो मियाँ साहब आपको पता है इज़ अ वेरी एक्सप्रेसिव मैन, बड़े मुअस्सर अंदाज में बात करते हैं, उनकी बात लोगों के दिलों को छूती है। मैं हमेशा से उनके उस रेटरिक का और तकरार का, उनके अंदाज़े तकरीर का मैं बड़ा मदार हूँ। वो जिस तरह से बात करते हैं वो घर करती है लोगों में। तो उनकी जो तकरीर थी वो तकरीर आपस में एक बातचीत के ज़िम्न में थी, और ऐसे अंदाज में थी जिसमें वो नोहा कना थे पहले कि जो तरक्की का सफ़र जारी था उसको रोका गया, ये एक जुर्म है इस मुल्क के साथ जो हुआ, ये बातचीत थी। आज जो बिल पेश हो रहा है वो दोबारा एक पंजाब एजेंसी कायम होगी जिसके चेयरपर्सन डीसी को इख्तियार होंगे। आपने कहा लोकल लोगों को, आपने गाहे बात की कि लोकल लोग बेहतर हैंडल कर सकेंगे। एक जिला सतह पे डीसी कैसे वो मैनेज एक गाँव को कर सकेगा, ये थोड़ा नहीं। देखें, अगर आप मुझसे दयानतदारी से पूछें तो आज क्योंकि मकामी हुकूमतें मौजूद नहीं हैं, तो जो बंदोबस्त है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए जो भी काबिल अमल शक्ल होगी उसके लिए, वैसे तो मैं डीसी का दफ्तर अब एक निशानी ऑफ कॉलोनियल इरा समझता हूँ। डीसी का दफ्तर जब इलेक्टेड हाउसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल से बदल के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बन जाएं, तो डीसी की भी खदो खाल बदलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन दफातर की इफादियत अब वो नहीं है जो कि कभी किसी उस दौर में होती थी जो प्री 1947 था, बट स्टिल दे आर हियर। तो जितनी देर है उनसे काम लें, बेशक सुथरे पंजाब वाले। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, अवामी मसाइल पर मौसर कानून साजी हमारी जिम्मेदारी है। मजीद कहा कि अपोजिशन के मेंबर्स भी निज़ाम का हिस्सा हैं, असेंबली को झगड़े का अखाड़ा बनाया जाएगा तो कैसे चलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मजीद कहा